Hello students, this is our 14th lecture and in this lecture we will learn about operator overloading. Now while learning operator overloading, what is the concept of it and what is the need of this? And overloading unary and binary operators and overloading of operators using friend function. These are the concepts we are going to learn in this video session. Okay. So before we actually start, what is the operator overloading? Operator overloading is a compile-time polymorphism in which the operator is overloaded to provide the special meaning to the user-defined data type. That means, पहले ये देखो, यहाँ पे क्या लिखा है? Int a is equal to b plus c. Okay. Now this is known as the addition operation on the integer values with the help of plus operator, यानी addition operator. Now I have created student S1, S2, S3. That means student नाम का एक क्लास है, उसके मैंने तीन ऑब्जेक्ट बनाए, S1, S2 and S3. Now can I write like this? S1 is equal to S2 plus S3. It's a big question. So if you want your operators which are available in C++, which works same as onto the user defined data type, that is class also. Okay, so to provide such type of mechanism, there is a operator overloading and this is known as compile time polymorphism, in which the operator is overloaded to provide the special meaning to the user defined data type. It is used to overload or redefine most of the operators available in C++. यानी आप plus operator, minus operator, divide operator, then plus plus, minus minus, ये जो सारे जो ऑपरेटर्स आप इंटीजर, फ्लोट, डबल पे अप्लाई करते हो ना, अगर आप क्लास के ऑब्जेक्ट्स पे अगर अप्लाई करते हो तो कैसे होता है, वो सब यहाँ पे सीखने को मिलेगा. It is used to perform the operations on the user defined data type. For example, C++ provides the ability to add the variables of user defined data types that is applied to the built-in data types. That means यहाँ पर क्या बोल रहा है ये कि built-in data type पे आप जो कर सकते हो वही operation आप user defined data type के objects पे भी कर सकते हो. When an operator is overloaded, its original meaning is not lost. That means plus है तो उसका addition ही मतलब होता है. ठीक है, तो operator plus which has been overloaded to add two vectors can still be used to add two integers. यानी array है तो array का एक ऑब्जेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट में प्लस साइन दे दो तो दोनों के पहला दूसरा तीसरा ऐसे एलिमेंट्स का एडिशन करेगा वो. और इंटीजर्स पे अप्लाई करते हो जो मैंने एग्जांपल अभी दिया है a इज इक्वल टू b प्लस सी, वो तो है. यानी जो ऑपरेटर का बेसिक टास्क है वो उसका बेसिक मीनिंग कभी चेंज नहीं होगा. This is a syntax where how are you going to overload the operator. Okay, so to overload an operator you need a one function where the return type is mentioned here. Whatever is the return type of your operator overload function, that you need to mention here. Here the return type is a type of the value returned by the function. क्लास नेम इज द नेम ऑफ द क्लास. आपका ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग का फंक्शन है वो कौन से क्लास से बिलोंग करता है वो क्लास का नाम है, फॉलोड बाय द स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एंड देन ऑपरेटर करके कीवर्ड है वो आपको वैसा का वैसा ही लिखना है, उसको चेंज नहीं करना है. और उसके बाद ओपी जो दिया है, ओपी है वो आइदर प्लस माइनस 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 प्लस प्लस ऐसे डिफरेंट ऑपरेटर्स को लेके आप ओवरलोड कर सकते हो. ठीक है, और इन ब्रैकेट आर्गुमेंट लिस्ट आप जिस पे अप्लाई करना चाहते हो ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग, जिसके ऊपर ये ऑपरेटर का मीनिंग अप्लाई करना चाहते हो, टास्क परफॉर्म करना चाहते हो, ठीक है, वो यहाँ पे एज अ पैरामीटर पास होगा. These are the various operators which are not allowed to overload, that is scope resolution operator, size of, member selector, member pointer selector and ternary operator. That means these are the 5 operators जिसको आप using operator overloading कभी overload नहीं कर सकते. First one is unary operator overload. What do you mean by unary operator? जिसमें single operand की जरूरत होती है, that is known as unary operator. That means अगर वेरिएबल के आगे माइनस साइन लगा दो तो वो क्या हुआ, यूनरी ऑपरेटर हो गया.
plus plus minus minus, they all are known as unary operators, which I have listed here. The unary operator operates on the object for which they are called, and normally this operator appears onto the left side of the object. यानी कि कोई इंटीजर का क्लास बनाया और उसका ऑब्जेक्ट I1 बनाया, ठीक है, तो उसके ऊपर अगर यूनरी ऑपरेटर माइनस अप्लाई करना है तब कैसे लिखोगे, माइनस I1, ठीक है। अगर उसमें कुछ इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना है तो प्लस प्लस I1 या फिर माइनस माइनस I1, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जांपल देखो, यहाँ पे क्या बनाया है, एक क्लास है, क्लास का नाम है डिस्टेंस, उसमें दो डेटा मेंबर दिए हैं, प्राइवेट करके एक इंटीजर फिट और इंचेस का, ठीक है। पब्लिक सेक्शन में यहाँ पे डिस्टेंस का एक कंस्ट्रक्टर बनाया है, दैट इज नोन एज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जहां पर फीट और इंच की वैल्यू 0 असाइन की है। सेकंड कंस्ट्रक्टर है डिस्टेंस इंटीजर फीट इंटीजर आई। अगर ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे मैं फीट और इंच की अगर वैल्यू पास करती हूँ तो उन दोनों का वैल्यू एज एफ आई मिलेगा मुझे ये कंस्ट्रक्टर में, जो मैं उसको असाइन करूंगी फीट और इंचेस से। एंड दिस फंक्शन इज नोन एज वॉइड डिस्प्ले डिस्टेंस, यानी फीट और इंचेस की वैल्यू मैंने डिस्प्ले की है। Now this is the important one, ठीक है, कि डिस्टेंस ऑपरेटर माइनस ऑपरेटर, जो कीवर्ड लिखा है वर्ड जो है वो वैसे का वैसे ही है, उसके बाद क्या लिखना है आपको, कौन सा ऑपरेटर ओवरलोड करना है, दैट इज माइनस, ओके। और जब भी आप किसी एक क्लास के ऑब्जेक्ट पर माइनस ऑपरेटर ओवरलोड करके कॉल करते हो तो उसका रिटर्न टाइप क्या होगा, वो सेम ऑब्जेक्ट ही रिटर्न होगा, लेकिन उसकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव होगी, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट बॉडी देखो, यहाँ पर देखो आप डिस्टेंस कॉलन, जो पहला डिस्टेंस है दैट इज अ रिटर्न टाइप, एंड दूसरा डिस्टेंस है वो क्लास नेम है, फॉलोड बाय स्कोप रेजोल्यूशन, और ऑपरेटर जो है उसमें उसका पैरामीटर दिया है, ठीक है। यहाँ पे क्या किया है, फीट इज इक्वल टू माइनस फीट, इंचेस इज इक्वल टू माइनस इंचेस, एंड इट रिटर्न्स अ न्यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फीट कॉमा इंचेस, दैट मीन्स ये जब भी ये काम करके ये ऑपरेटर का जो मेंबर फंक्शन है ऑपरेटर माइनस, जब भी कॉल होके काम करके रिटर्न करेगा तो एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जिसमें फीट और इंचेस की वैल्यू पास होगी, तो सामने कोई कैच करने के लिए भी चाहिए, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे डिस्टेंस के दो ऑब्जेक्ट बनाए D1 एंड D2, तो D1 की 11 और 10 की यहाँ पर 11 और 10 की वैल्यू पास दी है, D2 में क्या किया है, -5 और 11 एज अ वैल्यू फीट और इंचेस की दी है, ठीक है। तो माइनस D1 किया, यहाँ पे क्या किया, माइनस D1, तो क्या करेगा वो, अल्टीमेटली फ्लो कहाँ चला जाएगा, अपना ऑपरेटर माइनस वाले फंक्शन पे चला जाएगा, तो वहां जाकर दोनों फीट और इंचेस की वैल्यू वो माइनस कर देगा, और उसके बाद रिटर्न स्टेटमेंट में क्या करेगा, डिस्टेंस का एक एनोनिमस ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया है ना डिस्टेंस फीट इन ब्रैकेट फीट और इंचेस, तो वो जो भी वैल्यू होगी फीट इंच की माइनस हुई वो यहाँ पर देके वो रिटर्न करेगा, ठीक है। तो मैंने डिस्प्ले करा, उसके बाद D2 पे माइनस किया एंड देन डिस्प्ले, तो यहाँ पे आउटपुट देखो, फिट पहले क्या था 11 और 10 था, तो यहाँ पे -11 -10 हो गया, और D2 में क्या था -5 और 11 था, तो उसमें जैसे ही ये माइनस यूनरी ऑपरेटर अप्लाई किया माइनस D2 किया, तो उसने क्या किया, जो फीट की वैल्यू माइनस थी उसको पॉजिटिव किया और इंच की वैल्यू जो नेगेटिव थी उसको पॉजिटिव किया, ठीक है। तो इसको मैं रन करके दिखाती हूँ, देखो यहाँ पर मैंने ये डेटा मेंबर बनाए, ये दोनों कंस्ट्रक्टर है, ये फीट और इंच की वैल्यू डिस्प्ले करवाने के लिए ये फंक्शन बनाया, और ये है हमारा ऑपरेटर माइनस जो ओवरलोड कर रहा है माइनस ऑपरेटर को, ठीक है। उसका ये स्टेटमेंट बॉडी दिया है, ठीक है। अभी क्या बोला था कि जो ऑब्जेक्ट जो है, जैसे ये D1 लिखा है, D1 अकेले का मतलब क्या है, ओनली दिस इज द ऑब्जेक्ट, D1 इज द ऑब्जेक्ट, ओके। लेकिन यहाँ पर आगे जैसे ही माइनस लिखूंगी मैं, ये माइनस, ठीक है, ये जैसे ही माइनस लिखा अल्टीमेटली फ्लो कहाँ चले जाएगा, ये वाले मेंबर फंक्शन पे आ जाएगा जिसके थ्रू हमने माइनस ऑपरेटर को ओवरलोड किया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये फीट और इंच है
ये फीट और इंच, ये वाली फीट और ये वाली इंच, ये दोनों किसकी कौन से वहां से आ रही है, D1 से आ रही है, और ये मैंने यहाँ पे करंट ऑब्जेक्ट में स्टोर करवाई है और उसके बाद मैंने इसको रिटर्न करवा दिया। ठीक है, तो सेम वे D2, इसको हम कंपाइल करते हैं, बिल्ड करते हैं एंड देन एग्जीक्यूट। देखो यहाँ पे आउटपुट आया है ना। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल जिसके अंदर हमने प्लस प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड किया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्लास बनाया है टाइम करके, जिसके अंदर दो डेटा मेंबर दिए हैं, आवर्स एंड मिनट्स। ठीक है, एज एन इंटीजर। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में आवर्स और मिनट्स की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 से इनिशियलाइज करवाई है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से जो मैं ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे h और m को पास करूंगी वो आवर्स और मिनट को असाइन हो जाएगा। उसके बाद मैंने डिस्प्ले फंक्शन किया है, विद दैट आई कैन display the whatever value of hours and minute onto this console. Now look at this statement. Time operator plus plus, यानी जब भी मैं टाइम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर उसके ऊपर प्लस प्लस ऑपरेटर यूज करती हूँ तो ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है, उसका स्टेटमेंट बॉडी देखो यहाँ पर, तो देखो मिनट्स प्लस प्लस हुए, ठीक है, और मिनट्स प्लस प्लस किए, जिसका भी ऑब्जेक्ट जो भी ऑब्जेक्ट से ये कॉल हो गए उसी के मिनट और आवर्स को ये रेफर करेगा, यानी यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मिनट्स अगर 59 है तो वो क्या कर देगा, 60 हो जाएगा। अगर मिनट 60 और 60 से ज्यादा होती है तो उसको आवर्स में एक और ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इफ कंडीशन में वही लिखा है और मिनट्स में से 60 मिनट्स रिमूव कर देनी है। ओके, और रिटर्न करके टाइम के ब्रैकेट्स में आवर्स और मिनट्स दे दिया है। ठीक है, तो जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तो ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा, मिनट्स में प्लस प्लस होगा, मिनट्स ग्रेटर देन 60 है तो आवर्स में प्लस प्लस और मिनट में से 60 माइनस हो जाएगा। और ये जो नया ऑब्जेक्ट मिला, जो आवर्स और मिनट्स की जो वैल्यूज मिले हैं वो नए ऑब्जेक्ट टाइम करके एक एनोनिमस ऑब्जेक्ट बना के रिटर्न करवा देना है। मैंने देखो यहाँ पे कॉल किया, टाइम t1 करके 11 और 59 पास किया, तो 11 एज अ आवर्स लेगा और 59 एज अ मिनट्स लेगा। तो पहले क्या करेगा, वो 59 में 1 ऐड करेगा तो 60 हो जाएगा, तो 60 मिनट यानी आवर ऐड होना चाहिए बाय 1। ठीक है, तो वो 11 को 12 करेगा और मिनट्स में से 60 माइनस कर देगा, यानी मिनट 0 हो जाएगी। तो प्लस प्लस t1 से ये लॉजिक एग्जीक्यूट होगा, देन डिस्प्ले हुआ 12 एंड 0। उसके बाद वापस से करेंगे तो क्या होगा, मिनट में 0 से 1 हो जाएगा। अभी मिनट से 60 से ग्रेटर देन तो नहीं है तो आवर में भी एडिशन नहीं आएगा। हुआ, तो मैं ये रन करके दिखाती हूँ आपको। देखो सेम चीज यहाँ पे लिखी है, आवर्स, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एनोनिमस कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, डिस्प्ले टाइम एंड ऑपरेटर ओवरलोड। और ये ऑपरेटर ओवरलोड कौन सा किया है, प्लस प्लस का किया है। ये ऑपरेटर कीवर्ड सेम है, इसको चेंज नहीं करना है। तो उसके बाद आपको जो भी ऑपरेटर ओवरलोड करना है उसका वो सिंबल देना है। ठीक है, और उसका ये स्टेटमेंट बॉडी हमने क्लास के बाहर लिखा है, क्लास के अंदर भी लिखना चाहते हो तो हो सकता है, सेम एज दी मेंबर फंक्शन। ठीक है, और अभी मैं उसको यहाँ पर कंपाइल, बिल्ड एंड एग्जीक्यूट। देखो आया आउटपुट, वैल्यूज चेंज करके देते हैं। यहाँ पे मैंने डाला 50, तो क्या आना चाहिए, पहला प्लस प्लस t1 करेंगे तो क्या आएगा, 1151, और दूसरी बार करेंगे तो 1152। देखो आया आउटपुट। So this way you can overload the unary operator. I have shown you the two operator examples, that is minus operator and plus plus operator. Same way you can do it for the minus minus decrement operator also. Next is binary operator. The binary operators took two arguments, and following are the examples of the binary operators. You use binary operators for very frequently like addition, subtraction, डिवीजन। ओके, तो ये रहे, हम इसमें से हम प्लस का एक एग्जांपल देखेंगे कि प्लस ऑपरेटर को अगर क्लास के ऑब्जेक्ट पे कैसे अप्लाई करके यूज करना है।
वो in this example we have overloaded binary operator that is plus. Okay, यहाँ पर पहले मैंने एक क्लास बनाया that is the name box with 3 data members length, breadth and height. ठीक है, उसका बॉक्स का वॉल्यूम अगर फाइंड करना है तो उसकी जो फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, उसके अकॉर्डिंग मैंने एक रिटर्न स्टेटमेंट दे दिया है कि जब भी मैं बॉक्स का वॉल्यूम जानना चाहती हूँ तो वो मुझे रिटर्न करके देगा. उसके बाद मैंने तीनों वेरिएबल के लिए सेट मेथड्स बनाई है लेंथ, ब्रेथ और हाइट के लिए. जब भी मुझे नई वैल्यू असाइन करनी है तो ये यूज होगा उस टाइम पे. उसके बाद देखो यहाँ पर क्या किया है, बॉक्स यानी ये जो लाइन है उसमें कमेंट में box 3 इज इक्वल टू box 1 प्लस box 2 लिखा है. उसका मतलब क्या है, box 1 प्लस box 2 होगा तो वो अल्टीमेटली रिजल्ट कैसा देगा, बॉक्स का अलग एक ऑब्जेक्ट, तो box 3 जैसा कुछ मिलेगा तो उसका रिटर्न टाइप दिया है बॉक्स. उसके बाद ऑपरेटर, और कौन सा ऑपरेटर है, प्लस. ठीक है, उसके बाद ये जो ब्रैकेट में लिखा है बॉक्स एम% बी, उसका मतलब है हमने बॉक्स 1 प्लस बॉक्स 2 जो किया है उसमें बॉक्स 2 जो है वो बी में असाइन होगा और बॉक्स 1 हमें एज अ फंक्शन, ये बॉक्स 1 फंक्शन कॉल कर रहा है ऐसा अज्यूम करके बॉक्स 1 के डायरेक्टली हमें वेरिएबल्स यहाँ पर एक्सेस करने को मिलेंगे. यानी आप ऐसे सोच सकते हो कि बॉक्स 1 डॉट ऑपरेटर प्लस इन ब्रैकेट बॉक्स 2, ऐसे कुछ हो सकता है. ठीक है, तो यहाँ पर देखो उसका स्टेटमेंट बॉडी दिया है पूरा ऑपरेटर प्लस में. तो b जो है वो किसकी वैल्यू रिफर कर रहा है, बॉक्स 2 की. लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो है वो बॉक्स 1 की वैल्यू रिफर कर रहा है यानी करंट ऑब्जेक्ट को. और उसके बाद यहाँ पे जो लोकल ऑब्जेक्ट बनाया है बॉक्स, ठीक है, तो बॉक्स डॉट लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, उसमें दोनों का एडिशन होके स्टोर हो जाएगा. उसके बाद मैंने मेन के अंदर बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3 करके 3 ऑब्जेक्ट्स बनाए. वॉल्यूम एज अ डबल 0 से डिफाइन किया. उसके बाद बॉक्स 1 की लेंथ, ब्रेथ और हाइट सेट की एज अ 6, 7, 5. बॉक्स 2 की लेंथ सेट की 12, 13, 10. उसके बाद मैंने बॉक्स 1 का वॉल्यूम प्रिंट किया, बॉक्स 2 का वॉल्यूम प्रिंट किया. ठीक है, तो आ गया वॉल्यूम, तो मैंने दोनों को प्रिंट की थे. अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट क्या है कि बॉक्स 1 प्लस बॉक्स 2, तो बॉक्स 1 एज अ करंट ऑब्जेक्ट मुझे डायरेक्टली मिलेगा और बॉक्स 2 एज अ पैरामीटर मिलेगा मुझे. ठीक है, तो जब भी ये स्टेटमेंट आएगा तो ये वाला ऑपरेटर प्लस वाला फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा. ठीक है, और उसके बाद मैंने बॉक्स 3 का वॉल्यूम प्रिंट करवाया है तो इसका आउटपुट आ गया. अभी इसकी सिंपल वैल्यूज के साथ मैं आपको रन करके दिखाती हूँ. ठीक है, तो मैं यहाँ पर बॉक्स 1 की साइज 1, 1, 1 देती हूँ. ठीक है, बॉक्स 2 की साइज 2, 2 एंड 2, 2 करती हूँ. इक्वल साइज के दो छोटे छोटे बॉक्स देती हूँ. तो थर्ड बॉक्स का वॉल्यूम क्या रहेगा, थर्ड बॉक्स के लिए लेंथ का वैल्यू 1 प्लस 2 यानी 3, ब्रेथ क्या होगी 1 प्लस 2 और हाइट भी 1 प्लस 2 हो जाएगी. तो आंसर आपको थोड़ा बहुत पता चलेगा. देखो यहाँ पे 27 आ गया, 3 into 3 into 3. ठीक है, so this is the example for the operator overloading of plus sign. Okay, next is operator overloading using friend function. friend function तो सबको पता है. friend function क्या है कि फ्रेंड फंक्शन क्लास के अंदर डिक्लेयर तो होता है लेकिन वो उसी क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं कहा जाता है, वो नॉन मेंबर फंक्शन है. तो नॉन मेंबर फंक्शन ऐसे है जिसको हम परमिशन दे रहे हैं कि उसी के क्लास के जो प्राइवेट डेटा मेंबर्स है उसको हम एक्सेस कर पाए, तो वो फंक्शन के आगे हम फ्रेंड लिखते हैं. दैट इज द टास्क ऑफ फ्रेंड फंक्शन. Okay, an overloaded operator using a friend could be declared in either private or public section of a class. When an operator overloaded function is a friend function, okay, it takes two operands of the user defined data types. यानी explicitly पिछला जो एग्जांपल था, ठीक है, उसमें क्या था, बॉक्स 1 एज अ साइलेंट जा रहा था और बॉक्स 2 एज अ पैरामीटर जा रहा था. लेकिन फ्रेंड फंक्शन जब भी इंप्लीमेंट करोगे बाइनरी ऑपरेटर के लिए तो एक्सप्लिसिटली दो पैरामीटर ही जाएंगे एज अ ऑपरेंड. When redefining the meaning of an operator by operator overloading,
फ्रेंड फंक्शन वी कैन नॉट चेंज इट्स बेसिक मीनिंग, सेम चीज है जो आगे भी हमने की है, जो भी ऑपरेटर उसका बेसिक मीनिंग चेंज नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल वी कैन नॉट रीडिफाइन माइनस ऑपरेटर टू डिवाइड टू ऑपरेंड्स ऑफ अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. ओके, दैट इज द एक्चुअली अ रॉन्ग थिंग. सो लुक इट टू द एग्जाम्पल. ठीक है, यहाँ पर क्या किया है, कॉम्प्लेक्स क्लास बनाया जिसके अंदर नंबर 1 नंबर 2 करके दो वेरिएबल बनाए. दोनों की वैल्यू एक्सेप्ट रीड करवाने के लिए, यूजर से रीड करवाने के लिए मैंने एक्सेप्ट करके एक फंक्शन बनाया है. ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैंने देखो क्या लिखा है, फ्रेंड कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर प्लस. ठीक है, और उसके दो पैरामीटर है, कॉम्प्लेक्स C1 कॉम्प्लेक्स C2. ठीक है, तो ये क्या हुआ कि ये कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर प्लस है, वो कॉम्प्लेक्स क्लास का नॉन मेंबर फंक्शन है, बिकॉज ऑफ आगे फ्रेंड लिखा है इसलिए. ठीक है, और डिस्प्ले में क्या किया है, नंबर 1 और नंबर 2 की वैल्यू प्रिंट की है हमने. ठीक है, तो अभी जो फ्रेंड फंक्शन बनाया है उसका स्टेटमेंट बॉडी लिखना है. देखो कॉम्प्लेक्स दैट इज अ रिटर्न टाइप, कि दो कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट एडिशन होगा तो थर्ड वन इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स C, C dot num1 is equal to C1 dot num1 plus C2 dot num1. ठीक है, और num2 के लिए क्या होगा, C1 का num2 और C2 का num2 ऐड होके C के num2 में ऐड हो जाएगा और C में रिटर्न हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे आप कॉम्प्लेक्स C1 कॉमा C2 सम. तो यहाँ पर मैंने तीन ऑब्जेक्ट बनाए, तो C1 डॉट एक्सेप्ट करके वैल्यूज रीड करवाई यूजर से, देन C2 की एक्सेप्ट करवाई, उसके बाद मैंने सम इज इक्वल टू C1 प्लस C2 लिखा है. ठीक है, तो C1 प्लस C2 जैसे ही लिखूंगी वो समझ जाएगा कि ये जो प्लस लिखा है C1 और C2 के बीच में, उसका मतलब है ऑपरेटर प्लस फंक्शन कॉल करना है, विच इज अ फ्रेंड फंक्शन. ठीक है, तो यहाँ का C1 जो है वो कॉम्प्लेक्स C1 में जाएगा, C2 कॉम्प्लेक्स C2 में जाएगा, दोनों का एडिशन होकर रिटर्न जो C हो रहा है वो C जो रिटर्न होके असाइन किसको हो जाएगा, सम को असाइन होगा. उसके बाद मैंने C1 और C2 की जो वैल्यूज है एज अ डिस्प्ले फंक्शन मैंने प्रिंट करवाई है. ठीक है, और फिर सम फंक्शन की वैल्यू प्रिंट करवाई है. तो इसको मैं एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ आपको. देखो यहाँ पर नंबर 1 2 कॉम्प्लेक्स क्लास एक्सेप्ट फंक्शन सी आउट ऑपरेटर के यूज करके, उसके बाद मैंने ये ओवरलोड किया. अगर ये नहीं करती हूँ तो ये मेंबर फंक्शन हो जाएगा इसका. ठीक है, और बाकी सब चीज सेम टू सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जो ऑपरेंड्स है बाइनरी ऑपरेटर के लिए दो ऑपरेंड्स चाहिए, वो दोनों एज अ पैरामीटर यहाँ पर मिलेंगे. ठीक है, देखो यहाँ पर ये लॉजिक तो आपने पूरा देखा. ठीक है, और ऑब्जेक्ट बनाए तीनों के, C1 और C2 की वैल्यूज एक्सेप्ट की, सम इज इक्वल टू C1 प्लस C2 किया, उसके बाद C1 और C2 की वैल्यू डिस्प्ले करवा के सम डॉट डिस्प्ले करवाया. ठीक है, यानी ये जब भी आएगा वो कंपाइलर समझ जाएगा कि प्लस, यानी जैसे ही ये प्लस ऑपरेटर है C1 और C2 के लिए वो यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है, और फिर जो भी C में कैलकुलेशन आएगा वो सम में असाइन हो जाएगी. इसको हम कंपाइल करते हैं, बिल्ड करते हैं एंड एग्जीक्यूट करते हैं. यहाँ पे मैंने 12 एंड 13 दिया, दैट इज द ऑब्जेक्ट C1. नाउ ये है ऑब्जेक्ट C2 के लिए 11 एंड 10. देखो तो C1 और C2 की वैल्यू प्रिंट की, और सम के बाद की वैल्यू देखो क्या हुई, 23. ठीक है, so if you have any questions, any doubts, please note it down. Okay, and thank you for this watching video.